Hello and welcome back to my channel Chalk Talk. I hope you are doing great. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe to my channel. It is an educational channel for various competitive exams like banking, railway, SSC and other state government jobs, in which I teach quantitative aptitude, test of reasoning, English and general knowledge. So let's get going with this video to get started. Tennis player. So today we are going to discuss the current affairs of June and July. So let's get going with this question number 1. Which tennis player has announced her withdrawal from French Open after she was fined $15,000 and warned that she could face expulsion? उनको निकाला भी दिया जा सकता है टूर्नामेंट से. ये है नाओमी ओसाका, जापान का. Because why he was warned so? Because she decided not to speak with press during the tournament. टूर्नामेंट में प्रेस के सामना नहीं करना चाहती थी. तो देन नानू लेकिन जेजियांग, ये चाइना का एक लेक है, ईस्ट चाइना, एंड माओ जेडोंग्स बर्थ प्लेस. दीज आर so Nanu Lake in Zhejiang, East China, and Mao Zedong's birthplace. These three places are among the places that China is highlighting to attract tourists and named it Red Tourism. So question ये आ सकता है कि Red Tourism क्या है? ये तीन जगहों को हाईलाइट कर रहा है चाइना अभी टूरिस्ट के लिए. So this was in news recently. So then the question is, according to the Niti Aayog recently released third edition of Sustainable Development Index. What is Sustainable Development Index? So what is sustainable development? Sustainable development means development without harming the future. That is called sustainable development. So Niti Aayog's recently released third edition of Sustainable Development Index for 2021, which state returned top. So इनमें से कुछ को, so Kerala has returned the top rank. Bihar, Jharkhand and Assam were worst affected states. Then the Himachal Pradesh, Tamil Nadu returned second spot with score 74. Chandigarh returned the top spot among union territories with a score up to 79. It is followed by Delhi with a score 68. So these are the top and the worst. Then the question number 4, United Nations Environment Program, UNEP, and FAO, Food and Agriculture Organization, launched UN Decade, that means 10 साल इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए 2021 से 2030 तक क्या किए हैं? यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन and called on nations to meet commitment of restoring 1 billion hectare of land. ये जो लैंड है उसको रिस्टोर करने के लिए, जैसे थे वैसे बनाने के लिए, जहाँ फॉरेस्ट था वहाँ फॉरेस्ट बनाया जाएगा. ऐसे उन्होंने टारगेट किए हैं 1 बिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर जैसे थे उसी तरह से करने के लिए. किसने किया है ये? यूएनडीपी एंड फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. Then Raima Reserve Forest in Kokrajhar district of Assam recently became the 6th national park of Assam. This forest comes under Bodoland Territory region across the border with Bhutan. So we need to remember only the Raimona Reserve Forest in which district and in which state, which has recently been declared as the 6th national park of Assam. Then the number 6. Question number 6. According to the State of India's Environment Report 2021, India's rank has dropped by 2 places from X117 to 115. Sorry, 115 से 117, मतलब 117 हो गया. 2 places drop हुआ है. किसका रिपोर्ट है ये? Environment Report 2021. Ranking 17 Sustainable Development Goals. So 2020 में ये 115 था,
अभी 117 हो गया है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कुछ मैंने इम्पोर्टेंट जो 13 पॉइंट्स है उनको मैंने दिया है, बाकी आप पढ़ लेना। क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? एक में नो पॉवर्टी होना चाहिए, 2 में जीरो हंगर होना चाहिए, 3 में गुड हेल्थ एंड वेलबींग होना चाहिए, 4 SDG 4 में क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, SDG 5 में जेंडर इक्वलिटी मतलब मेल फीमेल का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए, मतलब 50 मेल तो 50 फीमेल होना चाहिए। देन SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए। 9 में इंडस्ट्री होना चाहिए, इनोवेशन, न्यू चीज़ें इनोवेट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होना चाहिए। SDG 10 में है रिड्यूस्ड इन एक्वेलिटीज, ये इक्वेलिटी इनइक्वेलिटी नहीं चाहिए, मतलब जिसमें ना हो इक्वेलिटी, मतलब जैसे कास्ट हायर कास्ट लोअर कास्ट ऐसा कुछ नहीं है, ना हो। देन SDG 13 मतलब क्लाइमेट एक्शन क्या ले रहा है स्टेट, इसी के हिसाब से 17 SDG फिक्स किया हुआ है यूनाइटेड नेशंस का मेंबर ने, और इसमें हम लोगों का जो रैंक है वो 117 है, पहले हम लोग 115 में थे। देन व्हाट इज बिमस्टेक? बिमस्टेक इज एन एक्रोनिम फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका एक्रोनिम बिमस्टेक का एब्रिविएशन क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देन who are the member countries? Now we will see how many countries are there and where is the headquarter, etc. So BIMSTEC is a regional multilateral organization established on June 6 in 1997 in Bangkok. ये बैंकॉक में बना था, 97 में बना था। कौन सा? बिमस्टेक। पहले ये बीस्ट था, बीस्ट बांग्लादेश था, इंडिया था इसमें, श्रीलंका और थाईलैंड, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इसी, पहले ये बीस्ट इसी कहा जाता था, लेकिन म्यांमार 97 में जुड़ने के बाद, इंक्लूड होने के बाद ये बिमस्टेक इसी बन गया। अभी नेपाल और भूटान भी फुल मेंबर बन गए हैं 2004 से। सो हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर विद बिमस्टेक? दीज आर द कंट्रीज। रिसेंटली ग्रुप 7 और G7 advanced economies signed a landmark deal on taxing multinational companies. As per deal, minimum gold tax rate would be at least 15%. G7 कंट्रियों ने मिनिमम रेट जो है ग्लोबल टैक्स को 15% मिनिमम बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि G7 ने कितना ग्लोबल टैक्स रेट बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक रिसेंटली टू बूस्ट MSME सेक्टर इन इंडिया। वर्ल्ड बैंक रिसेंटली MSME सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कितने पैसे दिए? $500 मिलियन, $500 मिलियन दिया हुआ है। देन हाउ मेनी MSMEs आर बीइंग टारगेटेड? इसमें कितने MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कितने टारगेट किया गया हुआ है टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस? 5,50,000 MSMEs को टारगेट बनाया गया है। देन न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट किया गया है कि कौन बने हैं? ये अनूप चंद्र पांडे इलेक्शन कमिश्नर बने। Which is the most livable city in 2021 as per a recently published report? रहने के लिए कौन सी जगह लिवेबल है रहने के लिए? बेस्ट प्लेस कौन सा है? ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, विच इज फॉलोड बाय ओसाका एंड टोक्यो ऑफ जापान, एडिलेड इन ऑस्ट्रेलिया, वेलिंगटन इन न्यूजीलैंड। सो बेस्ट प्लेस इज ऑकलैंड, इट इज इन न्यूजीलैंड। Then center has recently increased MSP, minimum support price paddy, धान के लिए कितना रुपया डिसाइड किए हैं, डिक्लेयर किए हैं? 1941,940 रुपीज पर क्विंटल, दैट मीन्स 19 रुपीज 40 पैसे।
1 किलो पेड़ी गवर्नमेंट खरीदेगा। सो देन नंबर 20, न्यूली नोटिफाइड नेशनल पार्क ऑफ आसाम, न्यू नेशनल पार्क बना दिहिंग पातकाई। Assam now has the third most national park, that is 7. So Assam has now 7 national parks in India. Then Madhya Pradesh with 12 national park and Andaman Nicobar has 9 national parks. So Assam is in third position after Madhya Pradesh and Andaman Nicobar. So how many national parks are there in Madhya Pradesh? It is 12. And how many national parks are there in Andaman Nicobar? It is 9. So there are 7 national parks now in Assam. Then 21. So then 21. Which country have been recently elected unopposed to the powerful UN Security Council as a non-permanent member for 2022 to 23 term? These are Albania, Brazil, Gabon, Ghana, and United Arab Emirates. These 5 countries have recently been elected unopposed to the powerful UN Security Council. So there are 15 members are there. Out of 15, 5 members are permanent members, 5 मेंबर जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं, बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। उन्हीं 9 नॉन परमानेंट मेंबर जो 2 ईयर्स टर्म है उनके अभी नए 5 कंट्रीज अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर की तरह गए हुए हैं। जो कंप्लीट कर चुके हैं उनका नाम क्या है, जिसके बदले में ये सब अभी नया कंट्री गए, ये हैं एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट, ग्रेनाडीन्स, टूनिसिया एंड वियतनाम। These 5 countries have completed their 2-year terms. Then the 5 permanent members are of United Nations. Which are the 5 permanent members then these are China, France, Russia, UK, United States. You can remember this as FARCHA, FURCHA. This is France, this is UK, this is Russia, this is China and America. These are the 5 permanent members of United Nations Security Council. The other 5 non-permanent members of the United Nations Security Council at present, ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक पावरफुल बॉडी है, वर्ल्ड का पुलिस भी इसको कहा जाता है। तो इसमें अगर कोई चेंजेस हो तो उसको हमको याद रखना है, इसीलिए मैं इसी के ऊपर 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो कौन कौन से बाकी 5 मेंबर कौन सा है, इंडिया है, आयरलैंड है, केन्या है, मेक्सिको है, नॉर्वे है। ये सब 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स पहले से हैं जिनका 2 साल पूरा नहीं हुआ है। Then 25, who has recently been elected to the head of the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, इसको हम UNCTAD कहते हैं, याद रखेंगे, याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। रेबेका ग्रीनस्पैन, she is an economist from Costa Rica. So Rebecca Greenspan is an economist from Costa Rica who has recently been elected to the United Nations Conference on Trade and Development. Then 26, an Indian origin journalist who has won this top journalist award of USA, Pulitzer Prize. USA का Pulitzer Prize कहाँ से दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये USA से दिया जाता है और जून 11 में ये दिया गया मेघा राजगोपालन को ये मिला है। Then in 27, the other 2 winners of this year's Pulitzer Prize. So एक है मेघा राजगोपालन, then the second and third are Nell Bedi of Tampa Bay Times and Kathleen McCrory, who has recently been, these two have recently been awarded this year's Pulitzer Prize, also with Megha Rajgopalan. Then 28, who is the winner of the French Open 2021 in men's single category? It is Novak Djokovic, defeated 5th seed Stefanos Tsitsipas. Then question may ask, Novak Djokovic belongs to which country?
or the Stefanos belongs to which country. So we have to remember the country names of these two tennis players also. Then who has become the new Prime Minister of Israel recently? It is Naftali Bennett. Naftali Bennett is the new Prime Minister of Israel. Then the next question, venue of the 31st formal meeting of the head of the government of NATO. NATO का formal meeting of the head of the government of NATO कहाँ पे हुआ? It is Brussels in Belgium. यहाँ पे हुआ. Then next question. Then the next question, 31st. 15th edition of Global Peace Index was announced by Institute for Economics and Peace, सिडनी से दिया जाता है. तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन सी इंस्टीट्यूट दे रहा है? तो ये है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी. विच इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री एज पर द रिपोर्ट? इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कंट्री द मोस्ट पीसफुल कंट्री है? आइसलैंड, देन द डेनमार्क, न्यूजीलैंड, पोर्टुगल एंड स्लोवेनिया. सो आइसलैंड इज द most peaceful country in the world as per the GPI. Then 32, which is the least peaceful country? Again for fourth consecutive year. सबसे least peaceful मतलब पीस बिल्कुल ही नहीं है. ये 4 बार हुआ. 4 consecutive years में कौन सी कंट्री को मिला है? ये अफगानिस्तान है. Then Afghanistan is followed by Yemen, Syria, South Sudan and Iraq. These are the worst countries, and among these Afghanistan is the worst one. Then 33, who was known as the Flying Sikh? It was Captain Milkha Singh. He was known as, or he is also known as the Flying Sikh, track and field sprinter. ये तो बाकी का जो क्वेश्चन है वो मिल्खा सिंह के ऊपर ही है. क्यों इतने क्वेश्चन मिल्खा सिंह के ऊपर दिया गया है ये आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा. तो मिल्खा सिंह हैज इंट्रोड्यूस्ड टू स्पोर्ट्स व्हाइल सर्विंग व्हिच विंग ऑफ द इंडियन डिफेंस सिस्टम? ये आर्मी में काम करते थे. ये क्वेश्चन अभी आ सकता है. ये कहाँ पे काम करते थे? देन हु इज द ओनली एथलीट हु वॉन गोल्ड इन 400 मीटर रेस एट एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम? इट इज मिल्खा सिंह. तो इसको गोल्ड मेडल मिला था एशियन गेम में भी और कॉमनवेल्थ गेम में भी. देन इन व्हिच एशियन गेम डिड मिल्खा सिंह विन गोल्ड मेडल? इट इज 1958 एंड 62. एशियन गेम्स में उनको गोल्ड मेडल मिला था. मिल्खा सिंह रिप्रेजेंट इंडिया इन व्हिच ओलंपिक? ये ओलंपिक में इंडिया की ओर से कब खेले थे? 1956 मेलबर्न ओलंपिक, 1960 रोम ओलंपिक एंड 1964 टोक्यो ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को ट्रैक एंड फील्ड में. देन मिल्खा सिंह वाज कॉन्फर्ड इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री फॉर व्हिच स्पोर्टिंग अचीवमेंट? फॉर हिज स्पोर्टिंग इवेंट. तो ये क्वेश्चन आ सकता है पद्मश्री मिला था या फिर और कोई पद्मा अवार्ड मिला था. सो देन 39, which state has recently announced a cash incentive of 1 lakh for having more children? ये जबकि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा रहा है लेकिन इंडियन स्टेट एक है जो कि एक से ज़्यादा बच्चे होने से 1 लाख रुपया का इंसेंटिव डिक्लेयर किया, मिजोरम. देन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ, सो दैट another question for Mizoram should be there. Then the population density of Mizoram at present is 52 persons live in area per square kilometer. 1 square kilometer में अभी 52 पर्सन है. नेशनल एवरेज, जबकि नेशनल एवरेज जो है वो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है. इसीलिए उन लोगों ने ये सब बनाया था क्योंकि इनका डर है कि कहीं मिजो पीपल जो हैं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए. देन वर्ल्ड ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन June 23rd June across the world to embrace all through pure Olympic values. So when does the Olympic Day observe? When does we Olympic Day observe the Olympic Day? It is 23rd June. Then Smart City Award 2020 was announced under the Smart City Mission on June 25th. Which state is the winner?
Uttar Pradesh is the winner and Madhya Pradesh came second while Tamil Nadu in third position. So Smart City Award recently been given in 25th June. Then which state is the winner? It is Uttar Pradesh. Then it is 43 Fukuoka Prize has 3 prizes category. It is the Grand Prize, Academic Prize and Art and Culture Prize. So 3 prizes are given under the name Fukuoka Prize. It is an award established by the city of Fukuoka and Fukuoka City International Foundation. It is given to honor work of individuals or organizations in preserving and creating Asian culture. So क्यों दिया जाता है? ये दिया गया है प्रिजर्वेशन के लिए और क्रिएशन के लिए एशियन कल्चर को। तो नोटेड साइंटिस्ट पी साईनाथ was selected as one of the 3 recipients of Fukuoka Prize. So ये जर्नलिस्ट जो है पी साईनाथ इनको मिला है। Then so the next question is on Sainath. P. Sainath is an Indian journalist. Who is P. Sainath? He is an Indian journalist and author of book called Everybody Loves a Good Drought. He has been actively campaigning over farmers' issue and backed Sanyukta Ekta Morcha that leads farmers' agitation in India. इसीलिए उनको ये मिला हुआ है। He was awarded with Ramon Magsaysay Award in 2007 because he believes journalism is for people, not for shareholders. So क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, उनका जो किताब है वो क्या नाम है और पी साईनाथ कौन है, इनको क्या प्राइज मिला है, ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। Then the academic prize of Fukuoka Prize will go to Professor Kishimoto Mio of Japan. Kishimoto Mio जापान ये जो है इनको एकेडमिक प्राइज मिला है। Then the prize for art and culture will be given to filmmaker Pravda Yun of Thailand. Pravda Yun थाईलैंड का जो फिल्म मेकर है उनको प्राइज ऑफ आर्ट एंड कल्चर मिलेगा। 49 ड्रग रेगुलेटर ऑफ इंडिया DCGI अलाउड मुंबई बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला। तो ये क्वेश्चन में ये है कि सिप्ला कंपनी को DCGI ने रिसेंटली अलाउ किया है कि इंपोर्ट करने के लिए कौन सा क्या ड्रग ना कोविड-19 का ड्रग जो मॉडर्ना कंपनीज का है उसे वो वैक्सीन ला सकता है। 50 में ये दिया गया है कि ये मॉडर्ना का कोविड-19 वैक्सीन के साथ मिलाकर इंडिया में कितने कोविड वैक्सीन मिल रहा है? 4 कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और ये एक मॉडर्ना कोविड-19। सो दीज वैक्सीन्स आर अवेलेबल नाउ इन इंडिया। Then Abhimanyu Mishra, an Indian origin American, recently became the youngest ever grandmaster, chess grandmaster बने हैं जून 30 में और ये youngest है। और 52 में ये दिया गया कि इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है youngest का ये किसके पास था? ये रशियन ग्रैंडमास्टर सार्जी कारजाकिन के पास था। तो अभी अभिमन्यु मिश्रा बने। Then the next question. सो 53 में ये दिया गया है कि अभिमन्यु डिफीटेड होम, किससे उन्होंने हराया? लियोन मेंडोनका ऑफ इंडिया इन पेनल्टीमेट राउंड ऑफ बेजारकेप्सो GM टूर्नामेंट एट बुदापेस्ट। ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था ये आ सकता है और किसको हराए हैं ये भी आ सकता है, इसीलिए ये हमको याद रखना है। देन 54 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ऑब्जर्व द नेशनल डॉक्टर्स डे ऑन 1 जुलाई एवरी ईयर। ये क्वेश्चन हमने क्यों दिए? इसीलिए कि अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है तो डॉक्टर लोगों को बहुत अवार्ड एंड ऑनर्स दिया जा रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है डॉक्टर्स डे कब मनाए जाते हैं। दिस डे इज ऑब्जर्व टू ऑनर द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ विधान चंद्र रॉय। डॉक्टर विधान रॉय की स्मृति पर यह मनाया जाता है। हु वाज ऑल्सो The second chief minister of West Bengal, विधान चंद्र रॉय सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल भी हैं। देन नेक्स्ट 55 द न्यूली लॉन्च्ड निपुण भारत इनिशिएटिव ऑन जुलाई 5th is meant to improve numeracy, foundational reading and understanding of early stage students. सो ये क्वेश्चन आ सकता है। निपुण का
एब्रीविएशन क्या है, ये 56 में दिया गया है। सो निपुण भारत इनिशिएटिव जो 5 जुलाई में लॉन्च हुआ है, और किस लिए? न्यूमेरेसी, नामबार सीखने के लिए, फाउंडेशनल रीडिंग के लिए, बच्चों के लिए फाउंडेशन के स्टेज में पढ़ने के लिए, और अर्ली स्टेज स्टूडेंट्स को ये निपुण भारत इनिशिएटिव किया गया है। इसका एब्रीविएशन है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। न्यूमेरेसी मतलब नंबर। Then 57. Which country was recently hit the hurricane Elsa? It is Cuba. हरिकेन मतलब जो हम लोग यहाँ पे इसको टोर्नाडो भी कहते हैं, और ये साइक्लोन, इंडिया में ये हम लोग साइक्लोन कहते हैं, लेकिन क्यूबा में इसको हरिकेन कहते हैं। 58. The tropical cyclone of the Atlantic Ocean, Caribbean Sea, Gulf of Mexico, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन इज कॉल्ड हरिकेन। सो अभी मैंने बताया था हरिकेन कहाँ पे कहते हैं, खाली सिर्फ क्यूबा में नहीं, यहाँ पे कहते हैं अटलांटिक ओशन में, कैरिबियन सी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ये सब जगह पे इसको हरिकेन कहते हैं। देन द न्यू एंड 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, इट इज पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी का है, और ये न्यू चीफ मिनिस्टर 11th चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये पॉपुलेशन डे है, और इस साल ये कितने साल का हुआ मनाते हुए? ये 32 साल हो गया अभी। देन विनर ऑफ द यूरोपियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये सॉकर का है, फुटबॉल का। इटली डिफीटेड इंग्लैंड बाय 3-2 गोल इन ए पेनल्टी शूटआउट। सो विनर ऑफ यूरोपियन चैंपियनशिप कौन है? इटली डिफीटेड इंग्लैंड। देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएफए, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूएफए, ये फुटबॉल का यूरोप में गवर्निंग बॉडी है यूएफए। माइकल प्लाटिनी इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएफए एट प्रेजेंट। देन हु गॉट द बेस्ट प्लेयर अवार्ड इन यूएफए चैंपियनशिप रिसेंटली? गियानलुगी डोनारुमा, इटली का है ये, गियानलुगी डोनारुमा। देन हु वाज एजज्ड द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द यूएफए चैंपियनशिप? पेड्रो गोंजालेज लोपेज, एंड ये पेड्री के नाम से भी जाने जाते हैं, ये स्पेन के प्लेयर हैं। ये यंगेस्ट प्लेयर ऑफ यूएफए चैंपियनशिप इस बार को मिला है। हाउ मेनी टीम्स participated in UEFA tournament? 24 teams were participated. Then the Union Minister for Commerce, Consumer Affairs and Food Textile, Piyush Goyal, is set to replace Thawar Chand Gehlot as a leader of House in Rajya Sabha. So new leader of House in Rajya Sabha कौन बनने जा रहे हैं? पीयूष गोयल। और पहले कौन थे? थॉवरचंद गहलोत थे। देन 68 द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ कर्नाटका, थॉवरचंद गहलोत, जो कि राज्यसभा का लीडर थे, जो अभी भी मैंने बताया कि पीयूष गोयल बने हैं, और थॉवरचंद गहलोत जो हैं उनको कर्नाटका का गवर्नर अपॉइंटमेंट किया गया है। देन ऑन जुलाई 18 सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन वाज अंडरटेकन बिटवीन जयनगर इन इंडिया एंड कुर्था इन नेपाल। तो नेपाल और इंडिया के बीच में ट्रेन चलने जा रही है, और ये सक्सेसफुली ट्रायल था, 18 जुलाई को किया गया। और स्टेशन का नाम याद रखना है हम लोग को, जयनगर एंड कुर्था। देन द लेंथ ऑफ द रेल सेक्शन इज 34.5 किलोमीटर, and this is the first section of the rail line between two countries which connects Kurtha in Mahotari district of Nepal to Joynagar in the Madhubani district of Bihar. So Madhubani district से महातारी डिस्ट्रिक्ट नेपाल तक ये पहला लाइन है, और 34.5 किलोमीटर का लाइन है। 1971 में क्या दिया गया है? फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर फ्रांस का है, और ये लास्ट 28 ईयर में पामडियोर कैंस फिल्म फेस्टिवल में पामडियोर अवार्ड दिया गया है 18 जुलाई को। और एक हॉरर ड्रामा टाइटन के लिए कौन है, क्या है नाम उनका? जूलिया
डुकोर्ना, इनको फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर फ्रेंच कहेंगे। देन who has won the Formula 1 British Grand Prix at Silverstone for record 8th time on 18th July? It is Lewis Hamilton of UK. This was the 99th edition, 99th win of Hamilton's career. तो इस बार फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन ने। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू पीएम ऑफ नेपाल शेर बहादुर देउबा ऑन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द कंट्रीज पार्लियामेंट। इट इज शेर बहादुर देउबा। सो ये पहले भी थे, अभी भी हैं, इनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में फिर से जीते हैं। देन द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, इट इज पेड्रो कैस्टिलो। इसको हमको याद रखना है, पेरू का प्रेसिडेंट कौन बने हैं। देन और 75 में दिया गया है न्यूली रिलीज्ड मोटो ऑफ आईओसी, इंडिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का न्यू मोटो रिलीज हुआ है। ये पहले था फास्टर हायर स्ट्रोंगर, अभी है फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। तो सिंस 1894 दिस वाज द मोटो, और इसको लैटिन में सिटियास अल्टियास फोर्टियास कहते थे, और अभी जो है पेरी डी कोबेटिन ने इसको बनाया था। ये जो मोटो दिए थे पेरी डी कोबेटिन एक स्कूल का टीचर थे और फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी थे ये। तो सिटियास अल्टियास फोर्टियास कम्युनिटर ये अभी बन गया, ये जो वर्ड है ये जोड़ा गया अभी। तो ये लैटिन वर्जन है, तो ये इसमें क्यों अभी ओलंपिक चल रहा है तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इसको याद रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियो ऑन दिस चैप्टर ऑल्सो। देन वेन्यू ऑफ द 2032 ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स, ये अभी अभी डिक्लेयर हुआ 2032 में कहाँ पे होगा। ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होगा, ब्रिस्बेन में होगा। अभी टोक्यो में चल रहा है, 32 का भी डिक्लेयर हो गया। और ब्रिस्बेन में ये थर्ड ऑस्ट्रेलियन सिटी टू होस्ट दी गेम्स आफ्टर सिडनी एंड मेलबोर्न। पहले 2000 में हो चुका है, उससे पहले 1956 में हो चुका है, और अभी ब्रिस्बेन में होने जा रहा है 2032 को। सो ऑस्ट्रेलिया में 3 बार होगा इसके साथ ओलंपिक। देन 77 में चलेंगे, और 77 जो है 77 इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन व्हिच टेम्पल ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को जो हेरिटेज लिस्ट बनाता है, इसमें इंडिया का एक टेम्पल अभी इंस्क्राइब हुआ है, मतलब ऐड हुआ है। तो ऑन 25 जुलाई इट इज रुद्रेश्वर टेम्पल, पलामपेट, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना। मुलुगु डिस्ट्रिक्ट पलामपेट का रुद्रेश्वर टेम्पल जो है यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में ऐड हुआ है रिसेंटली। दिस टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय काकतीय किंग गणपति देवाज जनरल रेचाल्ला रुद्र। तो किसने बनाया था? काकतीय डायनेस्टी जो था उसका गणपति देवा जो राजा थे उनके जनरल रेचाल्ला रुद्र, उन्होंने रुद्रेश्वर टेम्पल बनाए थे। रामलिंगेश्वर स्वामी इज द प्रिजाइडिंग डेटी ऑफ दिस टेम्पल। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने क्यों दिया कि अगर कोई भी चीज़ यूनेस्को यूनाइटेड नेशन में आ गया, न्यूज बन गया, तो उसके बारे में पूरा पॉसिबिलिटी है, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। इसीलिए मैंने ये दिया है। रामलिंगेश्वर टेम्पल, रामलिंगेश्वर स्वामी डेटी है वहाँ पे, इनको ये यहाँ पे पूजा होता है। तो डेटी मतलब देवता। देन दिस टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज रामप्पा टेम्पल। ये और किस नाम से जाना जाता है? ये रामप्पा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। Then 81, the 4 new sports which have recently been introduced in Tokyo Olympics. ये भी ओलंपिक अभी चल रहा है, इट इज ऑब्वियस क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा स्पोर्ट्स अभी इंट्रोड्यूस किया गया है? कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ये 4 स्पोर्ट्स जो हैं अभी इंट्रोड्यूस किया गया है।
Then 82, the 22nd anniversary of Kargil Vijay Divas is being celebrated across the country on 26th July to commemorate Operation Vijay. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या आ सकता है मैं पहले बता दूं। ये 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, और ये 26 जुलाई में क्या मनाया जाता है ये भी आ सकता है, और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है ये भी आ सकता है, और ऑपरेशन विजय जो है वो किस साल में चला था ये भी आ सकता है, ये 1909 में। सो इन द मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 21 इज ए नावल एक्सरसाइज। सो कटलेस एक्सप्रेस 2021 व्हाट इज दिस, क्वेश्चन ऐसा आता है। ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मैरीटाइम मतलब समुद्र में किया जाने वाला नावल मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इट इज कंडक्टेड फ्रॉम 26 जुलाई टू 6 अगस्त। कहाँ पे होगा, यहाँ पे चल रहा है अभी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कटलेस एक्सप्रेस 21 क्या है। देन इंद्रो 21 व्हाट इज इट, इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया टू बी हेल्ड फ्रॉम 1 to 13 अगस्त। ये होने वाला है। ये क्या होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज में आपस में टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफर किया जाता है। कुछ हमको पता है तो हम उनको देंगे और उनसे क्या कुछ सीखेंगे, इसी तरह से एक्सचेंज होता रहता है टेक्नोलॉजी। With this announcement, the total number of World Heritage Sites in Spain goes up to 49, which is the third highest globally, only after Italy and China. तो इटली में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके बाद चाइना में है, और उसके बाद स्पेन बन गया, थर्ड प्लेस में है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहीं पे है। देन 87 विनर ऑफ द वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप विच वाज बीइंग हेल्ड इन हंगेरी रिसेंटली, प्रिया मल्लिक डिफीटेड सेनिया पटापोविच ऑफ हंगेरी, इसको डिफीट किए। तो ये क्यों हम मतलब ये कैसे आ सकता है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है 87 में, प्रिया मल्लिक इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स, ऐसे आ सकता है। या फिर प्रिया मल्लिक रिसेंटली ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेम एंड दिस चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन व्हिच प्लेस। तो 4-5 क्वेश्चन इससे बन सकता है, इसीलिए इसको। देन 88 on 27th July Dholavira, the Harappan site of Kutch district in Gujarat has been named as the 40th Indian site inscribed in United Nations Heritage List. So again in question number 88 it is given, तो हमने तो रुद्रेश्वर टेम्पल बताया था अभी और एक प्लेस है धोलावीरा विच इज एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, और ये कच्छ में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। ये भी यूनाइटेड नेशन में 40th साइट की हिसाब से इंस्क्राइब हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब हिस्टोरिकल प्लेस। देन धोलावीरा इज द फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन इंडिया दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो प्लेसेस हैं इनमें से पहला प्लेस यही है, धोलावीरा है, जो कि यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में जगह हुआ है, उसको इंक्लूड हुआ है। तो बहुत से जगह हैं, जैसे रूपार पंजाब में है, कालीबंगन राजस्थान में है, इस तरह से बहुत से IBC साइट्स हैं। देन विनर ऑफ द नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल बंतिका अग्रवाल दिल्ली का डिफीटेड अर्पिता मुखर्जी ऑफ वेस्ट बंगाल। नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप, इसमें बंतिका अग्रवाल दिल्ली का डिफीट किए अर्पिता मुखर्जी को। देन 91 23rd चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इट इज बासवराज एस बोम्मई आफ्टर येदियुरप्पा। ही हैज रिसेंटली बीन elected as the chief minister of Karnataka. RBI also forecasted 9.5% growth and it cut down from the previously projected 10.5. तो ये जो कोविड का मामला चल रहा है, इसमें RBI फोरकास्ट जो किया था वो 1% कम हो गया है। क्या कम हो गया है?
ग्रोथ रेट जो इंडिया का है वो कम हो गया, 10.5 होना था, लेकिन अभी 9.5% फोरकास्ट किया गया है। वर्ल्ड बैंक ऑल्सो प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ 8.3% फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने दिया इसीलिए कि ऐसा क्वेश्चन आता है, हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए आरबीआई कितना प्रोजेक्ट किया ग्रोथ रेट, वर्ल्ड बैंक कितना किया, एडीबी व एशियन डेवलपमेंट बैंक कितना किया हुआ है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी काट दी इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फ्रॉम 11% टू 10%। अपने अपने हिसाब से वो लोग फोरकास्ट किए थे, अभी चेंज कर दिए हैं, थोड़ा कम कर दिए हैं, मतलब कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इतना ग्रोथ होगा। देन तो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, आरबीआई के हिसाब से कितना ग्रोथ रेट होगा, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कितना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से कितना होगा, आईएमएफ कितना होगा। जैसे कि 95 में दिया गया है, जुलाई 27 में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इंडियाज ग्रोथ रेट फोरकास्ट 9.5% किया था, और अभी 12.5% किए थे वो लोग, लेकिन अभी 9.5% कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ग्रोथ रेट जो है इतना होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, so it is 96 now. On 28 July, Union Cabinet declared changes to deposit insurance law of the country. तो ये क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस लॉ ऑफ द कंट्री। अकॉर्डिंग टू दिस चेंजेस अप टू 5 लाख ऑफ द फंड्स विल बी प्रोवाइडेड टू एन अकाउंट होल्डर within 90 days in the event of bank being put under moratorium by the RBI। ये इसका मतलब क्या है, जो DICGC नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, अगर बैंक इंसॉल्वेंट बन गया, मतलब दिवालिया हो गया, तो इसके लिए प्रावधान है कि इंश्योरेंस कंपनी वो पैसे दे देता है, क्योंकि हम लोग को जो इंटरेस्ट मिलता है और उसी में से कुछ पैसे 12 पैसे या कुछ 10 पैसे 100 रुपीज़ में लेते थे इंश्योरेंस वाले। अगर बैंक डूब गया तो वो पैसे दे देते थे, और ये 1 लाख रुपया ही देते थे। अगर किसी ने 10 लाख रुपया डिपॉजिट किया तो उसमें से 1 लाख रुपया जो है उसका इंश्योरेंस होता है DICGC में, बाकी 9 लाख का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ, 5 लाख रुपीज़ बना दिए गवर्नमेंट ने, तो ये जो है 5 लाख रुपया बैंक का ये इंश्योरेंस वाले देंगे। इसी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक से पढ़िएगा। अगर आप लोग समझ नहीं पाएंगे तो फिर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट 97 में चलेंगे। द डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम हैज ऑल्सो बीन रेज्ड बाय 20% इफेक्टिव इमीडिएटली एंड मैक्सिमम प्रीमियम लिमिट बाय 50%। जो प्रीमियम है वो 20% से 50% तक बढ़ सकता है। Then the current 5 lakh deposit insurance cover was raised from 1 lakh in the year 2020 में ये 1 लाख था और भी 5 लाख बन गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें लिखा गया है फर्स्ट पहले 45 दिन में ये है, और बाकी 45 दिन में उनको पैसे दिए जाएंगे। 45 डेज, फर्स्ट 90 डेज वो लोग टाइम लेंगे, 90 डेज में से क्या क्या करेंगे इसमें लिखा गया है। फर्स्ट 45 डेज में विद द बैंक बीइंग पुट अंडर मोराटोरियम इन द फर्स्ट 45 डेज। इसमें क्या होगा, जब से आरबीआई मोराटोरियम पीरियड मतलब बैंक को और काम करने नहीं दिया जाएगा, ये है मोराटोरियम पीरियड। और DICGC विल कलेक्ट ऑल द डिपॉजिट्स अकाउंट्स रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन। DICGC को वो डॉक्यूमेंट्स जाएगा, कौन कौन किसमें अकाउंट में कितना है वो सब जाएगा। बाकी 45 दिन में क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन विल बी रिव्यूड, इसको रिव्यू किया जाएगा किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, और डिपॉजिटर्स विल बी रिपेड विद इन 90 डेज, ये फिक्स किया गया। पहले तो 10 साल तक लग जाता था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंटली एज प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस कवर बैंक पेज टू 10 पैसे ऑन एवरी 100 रुपीज worth deposit to the DICGC. This is being raised to 12 paise on every 100.
सो 10 पैसे लेते थे पहले, अभी 12 पैसे देंगे प्रीमियम। बैंक को पे करना पड़ेगा DICGC को 100 रुपया में 10 पैसा, और अभी पड़ता था, अभी 12 पैसे देने पड़ेंगे। Then International Tiger Day, which is also known as World Tiger Day, is observed annually on 29th July. So 29th July is observed as the Tiger Day. Then how many tiger reserves are there in India? 15 tiger reserves across 18 states. So these questions may come, that's why I have given this question. Then India's 14th tiger reserve have received the Global Conservation Assured Tiger Standard accreditation. 14 टाइगर रिजर्व को ये मिला है ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कितने टाइगर रिजर्व को CATS एक्रेडिशन मिला है। देन यूनाइटेड स्टेट्स हैज अनाउंस्ड $25 मिलियन असिस्टेंस टू इंडिया टू सपोर्ट द COVID-19 वैक्सीनेशन एफर्ट अक्रॉस द कंट्री। तो यूनाइटेड स्टेट्स कितने पैसे दे रहा है COVID-19 वैक्सीनेशन को अक्रॉस द कंट्री बूस्ट करने के लिए? $25 मिलियन। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। इफ यू फील इट यूजफुल, then don't forget to give a like and subscribe, and also share with others, as many aspirants as you can, so that they also benefit from the information given in this video. This is Amar. Thank you for watching.